तो हमारे बिजनेस में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डाला और 3 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला। नाइस। F2 FinTech, एक AI पावर्ड डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन। मेरे को एक बार ना आपकी एक सेल्स मीटिंग में बिठा लेना। फैंटास्टिक, व्हाट अ सेल्स पर्सन यार, मजा आ गया। डूजो एक ब्यूटी एंड वेलनेस ऐप है जहां कस्टमर्स डिस्कवर एंड बुक कर सकते हैं सैलून, स्पास एंड स्किन क्लिनिक्स। शार्क टैंक के 4-5 सीजन्स में दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट आइडियाज जहां आपने इतना इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन किया है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम तेना पिक है और मैं बेंगलुरु से हूँ। Today I have a very important question to ask you. Choose one, career or kids? Good. Kids, Both. kids. Kids. 100% kids. Both. You have to Both. balance. Well, now you don't have to choose because Koro is the future. Every parent you know is burnt out. Offices don't work for families, play areas don't work for adults, and juggling both, it's a losing game. Koro is here to solve this. A family-first hub, a co-working space, cafe, community, and a play area designed so that both parents and adults can thrive. Koro is both playful and professional, built for the realities of modern parenting. According to our research, there's 3.5 crores urban families in India, and no one is serving them. This is why we are creating a brand new category of infrastructure. Today, I'm asking for 2 crores for 4% equity to scale Koro across South India. Together, we can change the way Indian families work, play, and connect. Welcome to Shark Tank. Thank you so much. Congrats for picking a pain point because this Yeah. is definitely a pain point for every mother and father. Help me understand as a consumer Sure. what my journey is. Koro spread across 2 floors. The first floor where you're going to be checking in with your child is the play area and the cafe. There are always play shapers on the floor. We are not a replacement for childcare, but your nanny, grandparents, the whole family is more than welcome to be with the child on the floor. Once you check in, you are more than welcome to go to the coffee shop, grab your coffee, grab your snack. In the meantime, the child is going to start engaging with one of the touch points on the playscape. In the meantime, you're going to go upstairs because parents need space and quiet. We have reading nooks, we have traditional meeting rooms, we have quiet zones. So how you want to engage with the space is entirely up to you. And you will be either a member or a pass holder, right? And depending on that is how heavy the usage of the space is going to be. Could you tell us something about your own background? Clearly, it doesn't seem like you were born in India. So shockingly, I'm not from India. I'm originally from Croatia. My husband is from Chennai. We met during our masters in London. I moved to Bangalore 7 years ago. Loved it, really enjoyed living in Bangalore. And then I had my son during COVID. And then what, right? I went back to work when my son was 3 months old, and I was lucky to be able to go back to work because it was still online. But even with all of the support, I still fell apart, right? Because there is simply a lack of infrastructure for families as a whole to go to. Then I started talking about what would this actually look like. At the same time, my partner and designer and the architect behind the space, Bhavna Kumar, was thinking about the same thing from an architectural perspective. So we came together and then Koro was born. Do you have something like a minimum guarantee that any person who signs up has to sign up for a month or 2 months? Yeah, quarterly. So we also have a membership sign-up fee of 25,000 rupees, Okay. which is paid in advance for cash flow and for sustainability reasons. And then the resident play only and off-peak memberships are charged quarterly as well. Does it work for full-time working moms? Because for a mother, even the smallest of requirement, if the mother is at home, especially when the kid is in the 1 to 4, 5, 7 age group, there is just too much distraction. And there is a lot of research now that having distracted work leads to more stress at work
as well as you're not fully able to be present as a parent. Absolutely, you've hit the nail on the head, Vinita, and this is actually really was the problem statement. First, this is why 2 floors. Number 1, spatial separation, super important. You're close enough, we're fully CCTV'd. You can see your child, they can't see you. Secondly, nannies are welcome. They're also included in the membership, right? So there is that comfort of the child having a familiar person, being the father, a nanny, a grandparent. How big is the space? 6,500 square feet across 3,000. 3,000. And how much does it take to make the outlet that you have? So the capex for Coro was 2 crores, How much does an average member pay per month? 20,000. And what do they get? Like, is it unlimited usage? Unlimited usage Monday to Saturday, including all of Coro events, our afternoon clubs, which are in-house, discount to outsource events with third partners, discount to our summer club, to Shera Camp, Diwali Camp, and then also different kind of perks. Both like husband and wife, or only one of them? 2 caregivers, Could be a nanny. 2 caregivers, 2 primary caregivers, 1 nanny and 1 child. Do you provide refreshments, etc.? Because that is a cost and a benefit. Yeah, so we have a full-fledged cafe downstairs, which is not in-house, by the way. And then upstairs, we have a pantry where coffee, tea, snacks. Is that free? Yes, exactly. The pantry upstairs is free. What is the actual usage of the paying members? When they So clock we're in? at about 60% occupancy on day-to-day basis. Members spend between, I would say, 4 and 6 hours a day. We have very few members who spend 8 hours a day in the space. When they spend those hours, it doesn't always mean it's a chunk of time. We get a lot of we come in the morning and then come in the afternoon, especially members who who are working US hours or who have smaller kids and they come later in the evening as well. So considering Bangalore traffic, what is the catchment area of each Coro and what are the operational hours? And how many Coros will be needed to cover only Bangalore? We're open from 9 to 6, Monday to Friday, 10 to 4 on Saturdays. When I say 9 to 6 and 10 to 4, that's very strict on the first floor because obviously children need supervision. However, second floor is flexible. You have calls late at night, you're coming in at 8 a.m., very, very flexible. Our catchment area is basically Koramangala, Indranagar, Domlur. How many Coros in Bangalore? I want 3 more in Bangalore. I want So north, total 4. south, east. Yeah. But it's 2 crores to set up one place. So the Yes. money you will take from us today will It's set for up the next one more Yeah, place. exactly. If you can share both the operating break-even as well as the payback. Payback. Yeah, on the of course. So this center has been bootstrapped. We are going to break even on CapEx in 2 years. We are breaking even on OpEx currently. Our monthly expenses are 9.9 lakhs. So you're right now making about 1.8 crore and you're spending about 1.2 crore. So you make about 60 lakhs and then there's tax, etc. is separate, right? Yeah. Are you break-even because you're collecting this 25,000 membership fee upfront? Or are you break-even if you amortize that 25,000 fee over 12 months? So the membership fee is 40% of our total revenue per month. The other revenue comes from events, space as a service, subletting the space for shoots, birthday parties, cafe, retail, and so on. I just want to again clarify. You mentioned we're 60% occupancy. So Yes. I'm assuming every month you're getting paid for 60 members 20,000, 12 lakh rupees every month, or that's not happening. It depends on a month-to-month basis. So it depends a little bit. So 60% occupancy is constant. However, because we had to stop the bleed, obviously, because it's such a capex heavy business, we've introduced the pass bundles, which means that you can buy a 10 pass, you can buy a 15 pass bundle. Then there's no minimum. Just tell us September, what was the membership revenue? September membership revenue was, we had 16 pass holders, like I said, which is at 11,000 per Okay. pass holder. Okay. 20 resident members. And then we also have about 5 play-only members. So there were about total 41 members in September who paid you for September. Exactly. On average, paid 20,000 or they paid about 10 to 15,000 on They pay average? on average 18,000. At which point you're making a certain amount of EBITDA per outlet or per 45 center. resident members for this particular center. How much revenue would that be and what would be the bottom line? So the top line with that would be about 20 lakhs a month. And the bottom line would be 10 lakhs. Yes. At that point, the payback period will start because right now we're kind of break even. Exactly. And it'll take from that point, Exactly. it will take about 2 years So for the we payback. should be reaching an EBITDA of 40% next year if we open 2 more centers. I think you're approaching your pilot incorrectly.
I think you're going into your pilot assuming that at 20 lakhs with 45 members, you're going to be the ideal profitable business. The problem with this assumption is that at 100 members, which is 100% utilization, which is very hard for real estate business to get to, that is when you actually make 20 lakhs, because otherwise you're scrambling for revenue from these events and, you know, ad hoc things, which makes you a real estate business. It is not then about the work, play, connect. The other challenge is that this is a place where only privileged people can afford, because you need a nanny, of course, to keep the child busy. 20,000 a month is more than a WeWork, which is like the most premium co-working space. With that, you are automatically capping out the number of people in an area who will be able to come here. I think it's very niche to be investable, so for that reason, I'm out. Okay. But I wish you the best. Perfect. Thank you so much. So firstly, you know, I think it's needed in India. What I'm struggling with the most is the lower occupancy. So I think there is some product market fit issue here. What I would highly recommend, start with one, go really deep in that, build the occupancies, the word of mouth, the buzz, the aspiration. There should be a long waiting list, you know, it should be the most coveted thing, and then you start scaling. So I think it's a bit early to raise money, show the proof of concept. And so for today, I'm out. Thank you so much. Thank you. You started when you felt you had a need. But the next process in that journey is actually talking to 100 people like or unlike you. And trying to understand if that need resonates with them as well. I don't think the PMF is fully achieved. Right? While the space is sort of, good, I would like to be out today. But all the best to you. Thank you so much. As an investor, what scares me in a metropolitan which is as intense as Bangalore, the occupancy is too low for my liking. So for today, I'm out, but wish you all the best. Thank you so much. I do have an idea for you, which is, I think your core skill lies in this design principles, thoughtfulness, the service element, the management element. Does it make sense, possibly, to collaborate with some large real estate companies? Absolutely. To say, hey, I will build a Coro for Absolutely. you, Absolutely. so that your capex goes away, Absolutely. and you can be on a management fee with them. Absolutely. Similar to how hotels are managed by Absolutely. companies. Today I am out, but wish you all Thank you the so best. much. And just to tell you, for me, the most important thing today was that you've all noticed how much care has gone into it, and that's the most important thing. So thank you so much. And you we all the are best. rooting for you, Tena. Thank you so much. Thank you. Wish you I'll all see the you best. soon then. See you. See you. Discounts की बारिश हो रही है, शाक्स बारिश. It's raining discounts on the Luzo app. आपके सभी nearest salons, spas और skin clinics में. बस download the Luzo app now. We know. टिप टॉप दिखने के लिए salon जाने में जान निकल जाती है. कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, डिस्काउंट नहीं मिला, तो कभी पार्लर आंटी अपने लवर के साथ भाग गई. भूल जाओ हेयर वॉश. ना आप सलोन पहुंच पाते हो और ना सलोन वाले स्लॉट्स भर पाते हैं. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं निखिल कलवानी मुंबई से और मेरे साथ है मेरे दो को-फाउंडर्स अनुरव दवे और मान जेटली. हम तीनों लेके आए हैं क्लैरिटी विद लूजो. लूजो एक ब्यूटी एंड वेलनेस ऐप है जहां कस्टमर्स डिस्कवर एंड बुक कर सकते हैं सैलून, स्पास एंड स्किन क्लिनिक्स, और उन्हें मिलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स. बेसिकली कस्टमर्स को मिलते हैं डिस्काउंट्स और पार्टनर्स को मिलते हैं कस्टमर्स. रिश्ता हुआ पक्का और डिस्काउंट्स सबका. शार्क्स सेल्फ केयर आज मार्केट में बॉस बन के बैठा है और हम उसमें किंग बनना चाहते हैं. इसीलिए हमारी आस्क आपसे है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1% इक्विटी. तो शार्क्स इन्वेस्ट इन आवर टिप टॉप बॉयज ताकि हम बनाए इंडिया को ग्लैमरस, वो भी ऑन डिस्काउंट. निखिल, मान, अनुरव, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5. थैंक यू. थोड़ा बताइए अपने बारे में. I met Anurav and Man at HR college in the 11th grade.
जहाँ पे मैंने बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स किया था। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। आफ्टर 12th ग्रेड मैंने चूज किया टू डू 5 years ऑफ लॉ, बट लूजो स्टार्ट हो चुका था बिफोर आई कंप्लीटेड माई डिग्री। मैं फुल टाइम लूजो में ही काम कर रहा था। मेरी फैमिली का एक सैलून फ्रेंचाइज है, फर्स्ट फ्रेंचाइज ऑफ बीवलैंड एक्चुअली। एंड as soon as 12th got over, मैंने मेरे मॉम को ज्वाइन किया इन बिजनेस। फिर हमने डिसाइड किया कि we'll start our own brand as well। एंड हमने 2 स्टोर खोले, एक वर्ली में, एक मलाड में। दैट स्टार्टेड इन January 2020, बट ड्यू टू कोविड वी हैड टू शट इट डाउन इमीडिएटली इन 2 months। सो इन्होंने जब मुझे प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे फैमिली के साथ, एंड वाज अ बैड टाइम फॉर हिम, तभी एज फ्रेंड मैंने जब ये मेरी मॉम को बताया तो मेरी मॉम ने सजेस्ट किया कि ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई ऐप है नहीं जो हेल्प कर रहा है सलॉन्स को बिजनेस बढ़ाने में। तो तब इनकी मॉम के साथ हमने आइडिया शेयर किया, फीडबैक लिया कि क्या आपको लगता है आप आंटी आप ऐसा ऐप यूज़ करोगे। उन्होंने कहा हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे, एंड दैट्स हाउ द आइडिया फॉर लूजो वाज बॉर्न। 3 चीजें होती है इन एप्स में जनरली, एक डिमांड जनरेशन, जी दूसरा बुकिंग मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, तीसरा CRM। करेक्ट। तो लूजो क्या करता है इसमें से? हम कस्टमर लाके दे रहे हैं। ओनली डिमांड। Lead generation. यस, लीड जनरेशन। आप प्लीज कंज्यूमर के एंगल से बताइए कि वो क्यों डाउनलोड करते हैं, और फिर सैलों के एंगल से बताइए। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, एंड करंटली हमने 4,50,000 साइनअप्स कंप्लीट कर दिए हैं, एंड जिन्होंने एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन किया दैट इज 70,000। ठीक है। विनीता एंड नमिता, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप कोई सर्विसेज सजेस्ट करेंगे जो आप बुक करना चाहेंगे। Hair botox. श्योर। नमिता आपके लिए? Pedicure. श्योर। सो वील गो विद द फर्स्ट वन, BBlunt पेडिक्योर। डेट सिलेक्ट कर लिया, टाइम सिलेक्ट कर लिया। सो जैसा कि आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो हम आपको देते हैं 40% ऑफ। कैप होगा ना लेकिन? नो कैप्स। Wow. ये अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट जाती है हमारे सलॉन पार्टनर के पास। दे विल कनेक्ट विद यू टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट विद इन 15 minutes। आपका मन जो चाहे आप वो सर्विस करा सकते हैं। एट द एंड जब आप बिलिंग काउंटर पे आएंगे तब आप खाली ये प्रोफाइल ओपन करके जो पे बिल बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। आपका बिल आया से 10,000। नेक्स्ट पेज पे जैसे आप देख सकते हैं जो आपने ऑफर सिलेक्ट किया था, जैसे बिल्कुल इजी डाइनर लग रहा है। हाँ, easy diner dialogue. कस्टमर जर्नी इज एग्जैक्टली सिमिलर Yeah. कि आप बुक करो, वहां पे आपका जो मन चाहे लो, एंड एंड में सिर्फ बिल ऐप से भर दो। दिस इज अ वेरी हाई टच बिजनेस। करेक्ट। यूजुअली आपका नॉट जस्ट विद अ सैलून, इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि जब सैलून में एक स्टाइलिस्ट जो सीनियर स्टाइलिस्ट हैं, अगर वो आपका एट्रिशन हो जाए तो उनका 50 to 60% बिजनेस भी उनके साथ चला जाता है। तो इसमें ये डिस्कवरी वाला पीस मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, बिकॉज यू डोंट ओपन एंड लुक फॉर दीज। मोस्ट ऑफ द सैलून्स जो आजकल चल रहे हैं वो एट 50 to 60% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर जो बीबलन जाने में समझो शाय होते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस, कि प्राइस एंट्री पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन विद दिस स्लाइट ऑफर वो एंट्री पॉइंट के अंदर आ जाता है। एंड ये जो डिस्कवरी मिलता है काफी नए कंज्यूमर बेस को, क्योंकि एक सलॉन के लिए दैट बिगेस्ट डिस्कवरी चैनल टू इंक्रीज कैपेसिटी फ्रॉम 55 to 70 इज ओनली कि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़े एड्स रन कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है मैं सलॉन के बाहर एक बोर्ड डाल सकता हूँ, एंड दैट इज वाई जो हमारा वेंडर एट्रिशन रेट है वो सिर्फ 3% कितने ऑन बोर्ड किए? Currently we have 1600 vendors. 1600 from how many cities? Mumbai, Bengaluru and Delhi. आपके बिजनेस में मान लेते हैं अगर 100 बुकिंग होती है एक दिन में, हैप्पी फ्लो कितने होते हैं? जिसने जो बुक किया है स्लॉट और जिस लोकेशन के लिए उनको वही का वही मिली है विदाउट एनी इंटरवेंशन। 55%। दैट्स That's नॉट not high. हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी अकेली इंडस्ट्री है जहाँ पे सलॉन में मल्टीपल सीट्स अवेलेबल होती है। कोई एक चेयर पे हेयर कट भी कराता है, कोई एक चेयर पे हेयर कलर भी कराता है। एंड से फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर कलर का, तो वो सर्विस होती है लगभग 4 से 5 घंटे की, बट एक स्टाइलिस्ट 4 से 5 घंटे उस पर कंटिन्यूस नहीं होता है। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर में वो स्टाइलिस्ट ब्लॉक हो जाता है, बट सिर्फ फ्लोर मैनेजर बता सकता है कि बीच में कलर अप्लाई करने के बाद वो एक हेयर कट भी कर सकता है। अगर आप जैसे भी इवन बीबलंट यूजर्स ज़ेनोटी अगर आप ट्राई करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने का, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना सर्विस, ये सर्विस विद ये स्टाइलिस्ट, मल्टीपल सर्विस आपको बुक करने ही नहीं देगा, बिकॉज for same time, same stylist, different services, it is impossible But to do. Anurag, that explanation doesn't help you. Of It course, hurts you. I agree with you. Yeah, actually. Because it shows the complexity. Absolutely, and which is why I feel, the biggest proposition for the customer is कि salon तो मुझे जाना है, service तो मुझे करानी है, पैसे तो मुझे भरने हैं. I might as well get something that benefits me. ये सारे सलॉन्स कुछ बुकिंग सॉफ्टवेयर तो यूज करते हो। Correct. एक
कॉमन होता है या सब लोग अलग सबके अलग? पास अलग अलग है। आपने कभी सोचा है कि आप वो वाला पार्ट भी उनको दे दें? नहीं, डिफरेंट स्टोरी कैसी है हमारी और उनकी कि वो सैलून में जाते हैं ये बोल के कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे जिस पे आप अपना खाली बिजनेस रखोगे, एंड हम बोलते हैं हम बिजनेस लाएंगे। बुक माई शो जब आया था, दे फर्स्ट स्टार्टेड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन दे रियलाइज यार ये तो चलेगा नहीं, दे मेड सॉफ्टवेयर, दे हैड लिटरली 90% मार्केट शेयर, 100% मार्केट शेयर ऑन द booking management of Correct. theaters. So they had real time visibility, कितनी टिकट, कौन सी सीट, कौन सा थिएटर, कौन सी मूवी अक्रॉस द कंट्री। करेक्ट। उसके ऊपर उन्होंने लेयर किया ये बुकिंग इंजन। अगर वो नीचे वाला नहीं होता ना, बुकिंग इंजन का कोई वैल्यू नहीं था। जो सॉफ्टवेयर मार्केट है बहुत फ्रैगमेंटेड है एंड इट इज़ अ प्राइस वॉर एट द मोमेंट इंडिया में। हमारा सबसे पहला मोड था कि हम सैलून्स को पहले कस्टमर्स देंगे, उनके यहाँ कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाएंगे। एक बार कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाता है देन वी कैन थिंक ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम ऑल्सो उनका अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं ताकि हमें ये कस्टमर एक्सपीरियंस हम डिलीवर कर पाए टू आवर कंज्यूमर्स। आई एम श्योर यू आर चार्जिंग समथिंग टू द सैलून, राइट? अगर वो आप कुछ चार्ज कर रहे हैं तो सैलून के इंटरेस्ट में आगे रेंट कि वो स्टाइलिस्ट डायरेक्टली एंगेज कर ले उनसे रेंट, Right. तो वो भी अपना बचा सकते हैं। तो दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। एंड देन व्हाई वुड दे नीड लूजो, व्हिच इज वेयर द लॉयल्टी क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, यू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड। सो जैसे आज मैंने किया हेयर कट एंड हेयर कलर एट BBlunt, बट टुमारो आई वांट टू गो फॉर माय नेल एक्सटेंशन, सो आई विल गो टू से फॉर एग्जांपल एन एनरिच सैलून और अ लुक सैलून। तो जैसा आपने देखा मुझे 20% कैशबैक मिला that I can use for my nail appointment. ये कैशबैक यहाँ पे जब मैं बिल करूँगा मुझे वापस मिलेगा और ये मैं स्पा में भी यूज कर सकता हूँ या क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स में भी यूज कर सकता हूँ। They don't have to be loyal to one particular चीज, वो लॉयल है ऐप से, एंड जब उनका जो मन चाहे, जो सर्विसेज जब चाहे, जहाँ चाहे वो करा सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल पे आते हैं। business और रेवेन्यू revenue के मॉडल बारे में एंड बताइए। बिजनेस पे आते हैं। हम एक्चुअली सैलून से उनके मेंबरशिप्स खरीद लेते हैं। 9,000 रुपीज़ के सर्विस के लिए हम 5,000 रुपीज़ उनको अपफ्रंट पे कर देते हैं। दिस रेंजेस फ्रॉम सैलून टू सैलून, ब्रांड टू ब्रांड, बट हमारे पास 3-4 स्टैंडर्ड वाले हैं एंड जो हमें डिस्काउंट मिलता है ऑन एन एवरेज फ्रॉम ऑल सैलून्स इज 37.1%। हम कस्टमर्स को 24 to 25% पास ऑन करते हैं एंड जहाँ पे 12 to 13% है हमारा ग्रॉस मार्जिन। PNL कैसे दिखता है? In the audited P&L, 9.9 crores was our revenue. Which is the GMV? No, that's the revenue. GMV इससे थोड़ा about 12.5 was the GMV. कौन से साल का ये? FY 24-25. 26 का भी बता दीजिए ना, पहले 6 महीने। As of date हमने 8.5 crores already cover कर लिया है। अभी तक कितना है EBITDA? Last month was -6%. This month is -2%. ये साल एंड में कैसे लगेगा? 24 crores and EBITDA 1 to 1.5% negative. and last quarter would be positive. Q4 will be positive. और yes. आपका कैश फ्लो के बारे में बताइए, क्योंकि Yes. आप बोल रहे हैं आप अपफ्रंट एडवांस दे रहे हैं, Correct. आपका वर्किंग कैपिटल बहुत हैवी होगा। Yes. तो आपका एट द मोमेंट 3-3.5 करोड़ वर्किंग कैपिटल में अटका होगा। 1.8. ओके, एंड आप क्यों नहीं उनके साथ रीनेगोशिएट कर लेते टू डू अ परसेंटेज रेवेन्यू शेयर रादर देन दिस मॉडल? The biggest I think reason to this is control of the marketplace. जैसे कि आप अदर फूड एप्स पे देखेंगे आपको दिवाली न्यू ईयर्स पे शायद कोई ऑफर मिलेगा ही नहीं, बट वेराज ऑन द लूजो ऐप अगर आप बुक करते तो हमने दिवाली पे भी वही ऑफर्स दिए हैं एंड न्यू ईयर पे भी हम वही देंगे जो आपको So अदरवाइज money से आप उनको कमिट कर लेते हैं अपने पास। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपने एक बार कमिट कर लिया, आपने इन्वेंट्री बेच दी तो आपका सेल इज डन एंड नाउ वी कैन सेल इट व्हेनेवर एट व्हाटएवर प्राइस वी वांट। जब 20,000 आउटलेट्स हो जाएंगे तब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा आपका। जो मेन चीज है कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो हमें अंडर 12 डेज लाना है। करेक्ट। अच्छा, बिकॉज एट इन्वेंट्री टर्नओवर अंडर 10 डेज जब हमारा ग्रॉस मार्जिन अबाउट 14% होगा तो सेम इन्वेंट्री को हम महीने में 3 बार रोटेट करेंगे एंड मेकिंग 42% ग्रॉस मार्जिन ड्यूरिंग द मंथ। अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। I'll tell you what the issue is, okay? This app works well with only tier 1. करेक्ट। And even in tier 2 you will have issues. Because ये इतना complex business है, जैसे हमने बताया, the stylist availability, the peak, non-peak, making sure the inventory, working capital. I have no doubt कि आप 20 crore से 100-150 crore तो पक्का पहुंच जाओगे। पर उसके बाद I am not getting the confidence that you will scale to a point that as an investor I'll get an exit. And for that reason I'm out. But kudos to you. 20 crores is fabulous. Thank you so much.
मैंने शार्क टैंक के 4-5 सीजन्स में दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट आइडियाज जहां आपने एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जिसको बहुत लोगों ने डिफरेंट वेज में ट्राई किया है उसमें जस्ट यूजिंग एन आइडिया इतना इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन किया है. आई डोंट थिंक राइट नाउ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज मुझे लगता है एक तो आज आपने अक्खा इंडिया को चिल्ला चिल्ला के बता दिया अपना आइडिया, सो इट इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट. सेकंड, ये काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जितना आप स्केल करेंगे उतना वर्किंग कैपिटल जाता रहेगा. एक थोड़ी बड़ी रिस्क है तो आपकी आस्क बहुत कम है इन कंपैरिजन. सो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट, बट बहुत मजा आया आपका ये मॉडल सीखकर. Thank you so much. My problem is that my expertise in this area is very less. आप तीनों जैसे अच्छे founders मेरे को मतलब बहुत rarely दिखते हैं. I would love to associate with you if Kunal is investing and he will have me. जॉ ड्रॉपिंग कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने के लिए इस बिजनेस में आपको बैकएंड ओन करना ही पड़ेगा. हो सकता है हम बना सकते हैं जॉ ड्रॉपिंग कस्टमर एक्सपीरियंस अगर हम अच्छे से लैंड ग्रैब करें, जिससे पहले कोई और आ सके. ठीक है, ये एयर होगा और लोग देखेंगे, पर कहना आसान होता है, बाहर से सब कर लेंगे साइन अप, जान निकल जाती है एक एक जाके सैलून ओनर को समझाने में. पर आपने अच्छे ब्रांड भी जोड़ लिए. पर क्या है ना, ये फाइनेंशियल्स थोड़े मिसलीडिंग है. आपने अपनी जो वैल्यूएशन है ना वो अपने 20 करोड़ के हिसाब से बनाई है. करेक्ट. वो मैं नहीं कर सकता. देखो, मुझे लगता है कि आपकी जो कमीशन इनकम है ना वो गिव और टेक 3 से 4 करोड़ रुपए है. करेक्ट. उस कमीशन इनकम पे 10x इज अ वेरी गुड मल्टीपल. तो मैं 1 करोड़ रुपए 3% के लिए इन्वेस्ट करूंगा. मैं और विराज, अगर ये ऑफर आगे बढ़ता है तो हम डिस्कस कर लेंगे स्प्लिट कैसे करना. Thank you so much for sharing that offer. मुझे ये पता है कि वो जो जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस है ना वो इसमें आने ही नहीं वाला, क्योंकि जो स्टाइलिस्ट की टाइम और अवेलेबिलिटी है ना यार वो बहुत टाइट रहने वाली है. और अगर मैं इसमें ऑफर देता भी तो मैं उतना अच्छा ऑफर ना देता जितना कुणाल दे रहे हैं. ही इज स्टिल बीइंग मोर काइंड. उस वजह से जो है मैं भी आउट हो रहा हूँ. बट गुड मीटिंग यू. We really love the offer, Sharks. इससे सिर्फ एक चीज आ जाती है कि हमने ऑलरेडी ये 2 VC राउंड रेस किए हैं. अच्छा, वो तो हमने पूछा ही नहीं. क्या था वैल्यूएशन? लास्ट वैल्यूएशन जो 6 महीने पहले था वो था एट 60 करोड़ प्री मनी, 63 करोड़ पोस्ट मनी. So we would love it if you could come at the same valuation, 1 crore for 1.5% equity. I appreciate the counter, but no chance. इतने ऑब्स्टिकल आने वाले हैं आपके इस मार्केट प्लेस को बड़ा बनाने में, तो वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. एंड हमारा कलेक्टिव नेटवर्क आपको मिल जाएगा. इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. Sharks, 1 crore for 3% deal पक्की. Nice. Thank you. Well done. Very good. Very good. I will remain your vendor for sure. Thank you so much. Thank you. You guys are awesome, yaar. Thank you. Thank you. All the best, guys. All the best. Super, very bright founders. बहुत मजा आया. Thank you, Well Sharks. done. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Check. Kunal was definitely on our top list because of almost same चीज किया था with Snapdeal, and जो उनके learnings थे and that he will pass them on to us, that is something that we would. जैसे उन्होंने कहा कि वो hurdles हटाने में हमारी मदद, हाँ. I'm sure अब काफी मदद होगी. Yes. शार्क्स, हमने तो हमारे बिजनेस में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डाला और 3 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला. Very nice. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अभिनव अवल और मैं हूं हरप्रीत सिंह. हम आए हैं बरेली, उत्तर प्रदेश से इंडिया की लैंडिंग मार्केट को सिंप्लीफाई करने. क्योंकि इंडिया में लोन लेना तो इजी है मगर सही लोन लेना बहुत मुश्किल है. एक तरफ बैंक चक्कर कटवाते हैं, 500 लोन ऑप्शन से हमें चक्कर आने लगते हैं, और अगर ब्रोकर के चक्कर में पड़ गए तो एल फॉर लोन नहीं, एल फॉर लाइफ की लग गई है. और वहां ही आता है F2 FinTech, एक AI पावर्ड डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन
जो देता है आपको 3 T's, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। हम ऑल इन वन है। एक ही जगह पे कंपेयर करें अपने सारे लोन ऑप्शंस। एक ही बार में लाइव फाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस। इंडिया के करोड़ों लोन सीकर्स को F2 फिनटेक जीपीएस बन के राह दिखा रहा है, मगर स्केलिंग की राह पे जाने के लिए हमें जरूरत है आप सबकी। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% इक्विटी। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat, and Crunchyroll, and partner Fixderma. Abhinav and Harpreet, welcome to Shark Tank India Season 5. थैंक यू। प्लीज अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, आप दोनों के फ्रेंडशिप कैसे हुई, डायनामिक के बारे में बताइए और उसके साथ साथ बिजनेस के बारे में भी बताइए। सर, हम लोग मिले थे पूरी आलू खाते हुए अपनी सीपीटी की कोचिंग के ठेले के बाहर, और लग भी ऐसे ही रहे ना। किसकी कोचिंग? सीपीटी, हम लोग सीए कर रहे थे दोनों साथ में। तो नमिता जैसे 21 साल में सीए बन गई थी, हम लोगों ने भी अपना 17 साल 18 साल में सीए करना शुरू कर दिया था, और हम लोगों ने अपनी सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर ली थी क्लासेस बरेली में ही। वहाँ से शुरुआत हुई आईपीसीसी, जो सेकंड ग्रुप होता है हमारा। मगर ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मगर फिनेंस डोमेन में। तो फिर वहाँ पे मैं अपना सीए ड्रॉप आउट करके मैं अपना एमबीए करने पुणे चला गया। वहाँ मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से पढ़ाई करी। 3 महीने की समर इंटर्नशिप मिली इंडिया की टॉप एनबीएफसी बजाज फाइनेंस में। Oh, lovely. वहाँ पे मैंने 3 करोड़ की सेल करी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया। मैंने वहाँ पे अपना रिलेशनशिप मैनेजर की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट करी। मैंने 3 साल 11 महीना बजाज फाइनेंस के लिए ही काम किया। मैं 3 प्रमोशन लिए इस 3 साल 11 महीने में। मेरे पास 70 लोगों की टीम आ गई थी मैनेज करने के लिए, जिससे हम लोग डॉक्टर्स को लोन दिया करते थे। इंडिया में 9,450 एनबीएफसीज हैं जो पैसा देते हैं, और 35 से ज्यादा बैंक्स हैं जो पैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ इसी इंडस्ट्री में खुद का भी किया जा सकता है। तो वहीं से वो वाली इनपुट को लेके तो मैंने अभिनव से कहा कि हम लोग 3 महीने का टेस्ट रन करेंगे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो मैं एकदम से जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। अब तू इस इंडस्ट्री से नहीं आता, तो मैं जैसे एक नए एम्प्लॉय को सिखाता हूं अपनी कंपनी में, मैं सिमिलरली तेरे को सिखाऊंगा, और उसके बाद बना पाए उसका अच्छा धंधा तो मैं अपनी जॉब छोड़ के आ जाऊंगा और हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। मैं एक से हरप्रीत, मेरे को एक बार ना आपकी एक सेल्स मीटिंग में बिठा लेना। आई कैन इमेजिन एज अ रीजनल मैनेजर अपनी सेल्स टीम से कैसे बात करते होंगे। 10-12 करोड़ लूट जाएंगे, ज्यादा मत बैठो उस मीटिंग में। फैंटास्टिक, व्हाट अ सेल्स पर्सन यार, मजा आ गया। हाँ अभिनव, प्लीज बताइए अपने सो आई बारे में। डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम बरेली डीपीएस। 12th के बाद हम दिल्ली गया मैं सीपीटी करने के लिए। तो उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया 2 साल के लिए। आपने भी ड्रॉप आउट मार दिया? ड्रॉप आउट मार दी। मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वो पर्सनालिटी नहीं हूँ जो 6 साल एक कमरे में बंद रह के पढ़ाई कर सकूं। ये कैसी पर्सनालिटी होती है जो सीए पास करता है? नहीं, ये अलग वाली है, ये 100 में 1 वाली है। ये अलग वाली है। वाह। आप सचमुच बहुत अच्छे मैंने बोला ना सेल्स वाले, ये अमेजिंग। So I left Wipro after 2 years. Then I joined for my college for MBA. कॉलेज का खत्म होने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन 200-300 आइटम की थी, विच आई मेड इट टू 3,000 to 4,000 प्रोडक्ट लाइन आइटम एंड इंक्रीज द रेवेन्यू टू 5x। ये क्या बिजनेस था? एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं 3 साल जब अपने फैमिली ओन्ड बिजनेस में रहा तो मैंने देखा कि लिमिट है इस धंधे में। मेरे को कोई धंधा करना है इसमें लिमिट ना हो यार। मैं जो भी चीज चाहूँ वो मैं खरीद सकूँ, जिस चीज पे उंगली रखूँ वो मैं पा सकूँ अपनी जिंदगी के अंदर। ये दूसरा बढ़िया सेल्स पर्सन। तो हरप्रीत ने ये वाला आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे करके अपनी एक कंपनी बनाते हैं। फिर मैं 2019 दिसंबर में आया मैं दिल्ली। हम लोगों ने 14th of January को ऑफिस ले लिया था। हरप्रीत ने अप्रैल में जॉब छोड़ दी थी, जब इसको समझ में आया कि हाँ यार अपनी सैलरी जितना पैसा तो मैं कमा लूंगा और ये लड़का भी तेज है, तो हम कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम बैंक्स के प्रोडक्ट के और एनबीएफसी के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, कमीशन एजेंट। जैसे अभी हम लोग की फिक्स्ड कॉस्ट 18 लाख रुपए के आसपास जाती है, सिर्फ टेलीकॉलिंग सेल्स वाली। तो हम लोगों को लगा कि यार ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसको बार बार ट्रेन करना पड़ता है, 4-5 महीने लग जाते हैं। फिर अगर वो जाता भी है तो फिर जब नया इंसान आता है तो ट्रेनिंग वाला लूप फिर से शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने बस यही सोचा कि किस तरीके से हम एआई को अपने फील्ड में लगाएं ताकि हम अपनी कॉस्ट बचा पाए। तो हमने सबसे पहले बनाया अपना सेल्स एजेंट, जो आपको अलग अलग कस्टमर्स को एडवाइजरी दे सकता है। आप उससे हिंदी, इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज में आप उससे बात कर सकते हैं। अभी हम लोग आपकी लैंग्वेज के लिए भी ट्रेन करेंगे इस पिच के बाद। मेरी मतलब गुजराती के लिए। तो इट्स लाइक अ चैटबॉट। नो, चैटबॉट तो 2-3 साल पहले खेलता है। ये नॉर्मल बहुत आगे एजेंटिक एग्जीक्यूशन। राइट। क्या करूं? स्पीकर पे ले लो आप और बात करो। I'm Neha, your AI assistant.
from F2 Fintech. Am I speaking with Dr. Kunal? Dr. I'm Kunal. not doctor, I'm Mr. But yes, Kunal. Thank you for confirming, Kunal. I'm calling because हम प्रोफेशनल्स के लिए लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. मुझे अभी एक घर खरीदना है, उसके लिए मेरे को 25 लाख रुपए का लोन चाहिए. आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहेंगे? 10 साल के लिए. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस हम आपको अनसिक्योर्ड लिमिट अप टू 30 लाख रुपीस तक दिला सकते हैं. ये अनसिक्योर्ड लोन है क्या? नहीं, होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है. आपने अनसिक्योर्ड बोला था ना अभी? माफ कीजिए, मैंने गलती से अनसिक्योर्ड बोल दिया था. होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है. क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रोसेस आगे बढ़ाऊं? मराठी में बना है. मल्टी लैंग्वेज है, कोई भी हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. अभी But हमने this is pretty Fantastic, amazing. यार. इंडिया में टोटल जो है 30 मिलियन से ऊपर एम्प्लॉयड हैं इन वॉइस कॉलिंग. तो ये एआई का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में अगर ये इस लेवल पे अडॉप्शन हो गया और इस लेवल की क्लैरिटी आ गई तो हमारे बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होंगे. इट स्केयर्स मी. बट हाँ, इंडस्ट्री में हो रहा है और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. आई एम श्योर बैंक बाजार और पैसा बाजार ने भी अडॉप्ट किया होगा. ये अभी नहीं कर रहे हैं. हम लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इसमें. एआई की दुनिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है. राइट सर. सेकंड मूवर की ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर दिखा देता है किस रास्ते जाना है. बिल्कुल. और वो सस्ते में कर लेते हैं, Correct, क्योंकि sir. प्राइस, द कॉस्ट ऑफ एआई इज आल्सो कमिंग डाउन, कॉस्ट ऑफ कंप्यूट इज कमिंग डाउन. लार्जली अभी ये कमीशन एजेंट बिजनेस है, मोस्टली ऑफलाइन ही है बिजनेस. ये ठीक होगा बोलना? राइट. तो ये सैकड़ों जो कमीशन एजेंट हैं जो बैंक्स और एनबीएफसीज के बिहाफ पे कंज्यूमर्स को लोन बेच रहे हैं, जो आपने वर्ड यूज किया था, हाउ इज दिस कंपनी डिफरेंट? सर, हम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब एग्रीगेटर है, जो नीश प्रोफेशनल्स को ही डील करता है. डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट. 90% जो मेरा रेवेन्यू आता है वो डॉक्टर से आता है. क्योंकि आपने 3 साल बजाज में वो ही किया था. हरप्रीत, आप 2022 से अपने बिजनेस के बारे में बताइए. सर, जैसे हम लोगों ने F2 फिनटेक को फॉर्म किया और हम लोगों ने 2022 में मेजरली टेक बनाना शुरू किया. तो ये वो स्टेज थी जहां हम लोग को ये समझ में आ गया था कि डीएसए बन के नहीं रह सकते. कुणाल सर ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं. हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मगर तब भी वो अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे पा रहे हमारे इंडिया में. जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्लिनिक बिल्ड करने के लिए शायद चाहिए 10 करोड़ रुपए. शायद उनकी एक मशीन आएगी 18 करोड़ रुपए की, जो कैंसर की मशीन होगी. तो उनकी एपेटाइट भी ज्यादा होती है. तो हम लोगों ने जब इन एचएनआई कस्टमर्स को एक्वायर करना शुरू किया तो हम लोग को समझ में आ गया था कि अगर हम सिर्फ सैलरीड में गए या सिर्फ बिजनेस में गए तो बड़ा धंधा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कैपिटल नहीं है. और जीरो कैपिटल से हमने शुरू किया. ठीक है, नंबर्स. FY 2022 में 3-4 महीने का ही बिजनेस दिख पाया था, तो उसमें 20 लाख रुपए का हम लोग का टर्नओवर दिखा है. 2023 में हम लोग का टर्नओवर है 3 करोड़ 50 लाख. ये 23-24 फाइनेंशियल 23-24 का है. ये क्या है? लोन डिसबर्ड नहीं है, ये आपका कमीशन है. कमीशन नहीं हम लोग. और कितने लोन के लिए दिया? अराउंड 150 करोड़. 24-25 में हमारा रेवेन्यू था 3 करोड़ 73 लाख. वैल्यू ऑफ लोन्स 185-190 करोड़ के आसपास. ओके. और फिर नेक्स्ट ईयर फ्लैट था. 3.5 करोड़ कमीशन से 3.73 कमीशन चले गए. क्योंकि हम लोग तब टेक बिल्ड कर रहे थे, तो हमारा मेन पैसा जा रहा था कि हम कैसे अब कॉस्ट कम करेंगे. और फिर पहले 6 महीने अभी तक हम लोग सर क्रॉस कर चुके हैं 3.5 करोड़. और हमारी बॉटम लाइन क्या थी इन 3 सालों में? सर 21 लाख रुपए हमने 23-24 में कमाया. 28 लाख रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट किया 2024-25 में. इस साल हम लोग सर मोटा मोटा 45 लाख क्रॉस करेंगे. तो आपके एक्सपेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे मेजर मेरा जाता है सैलरी में. फिर कितने मेरा लोग जाता हैं? अभी हमारे पास 105 लोग हैं. अदर देन एम्प्लॉय कॉस्ट जो सेल्स और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, नॉन ह्यूमन मार्केटिंग कॉस्ट है आपका कोई लीड जनरेशन कॉस्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट? वो हम लोग नहीं करते हैं. दैट्स द पॉइंट. नहीं कर रहा है. यार मैं सरप्राइज्ड हूँ. मुझे लग रहा था आपने जैसे एआई कॉलिंग और एआई वाला वो जो पूरा बताया ना कि आपका जो है ना टीम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लीन होगा. 70% पैट बना रहे होगे आप. जब तूने बताया यार इसके लिए 100 बंदे रखे हुए, तो वो नेहा जो कॉल करके इतने बढ़िया बातें कर रही थी, उसका क्या फायदा? सर ये एआई बॉट 1 महीने पहले बना है. अच्छा. 2 चीजें मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी. एक आपकी सेल्स एनर्जी. थैंक यू सर. 440 वोल्ट पे रहता हूँ सर मैं. कम बोल रहे हो, मेरे को लगता है उससे भी ज्यादा है. दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक सेगमेंट पकड़ा है डॉक्टर्स, और फिर डॉक्टर्स का बहुत टाइट नेटवर्क होता है. डॉक्टर्स को जानते हैं. प्रीटी मच मेरे को और कुछ नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डीएसए ही है अभी. और हर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी एआई अपने बिजनेस में लाना चाह रही है. आप भी लाना चाह रहे हो. ग्रेट एफर्ट.
बट आज सारा बिजनेस ऑफलाइन टेलीकॉलिंग से ही आ रहा है। ये वेंचर फंडेबल बिजनेस नहीं है। आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार हरप्रीत, अभिनव, मुझे बताओ तुम्हारी ड्रीम गाड़ी कौन सी है? मस्टैंग GT। रॉयल्स रॉय। रोल्स रॉयस गोस्ट। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगले 5 से 7 साल में अपनी ड्रीम गाड़ियां दोनों खरीदोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो खरीदोगे क्योंकि आप जेन्युइनली अच्छे सेल्स और बिजनेस ड्राइवर हो। बट जैसे कुणाल ने कहा, मुझे भी नहीं यार ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगा। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कि ना इन्वेस्टमेंट फर्दर रेज नहीं होगी या एग्जिट वैसे क्रिएट नहीं होंगे, बट आपके लिए प्रॉफिट बहुत अच्छे क्रिएट होंगे। तो आई एम आउट यार। I genuinely feel that you guys will flourish in this business. But this is not a fundable / exit getting business. But for those reasons, आज मैं इस डील से बाहर हूँ. Wish you all the best. थैंक यू। Sales person वो होता है who understands personalization, customization to make the other person feel special. और आपने बोलते बोलते ही 3-4 फैक्ट्स मेरे बारे में ऐसे बोल दिए कि आई फेल्ट वेरी स्पेशल। सो आप में सचमुच एक हुनर है। राइट नाउ इज जस्ट अ कमीशन बिजनेस। लेट्स से आप डॉक्टर्स के बाद CA के बाद लॉयर्स, व्हाटएवर, यू विल कीप एक्सटेंडिंग। बट देन you yourself said 9,540 NBFC, right? Fintech in India is one of the biggest stories. एक जगह पे वो all of us are saying the same thing. तो स्केलेबिलिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। So right now पैसा बाजार को तो सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग किया, सेम काम कर रहा है, 333 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है। उस जैसे 5 हैं, बेसिक होम लोन है, लोन बाजार है, बैंक बाजार है, सारे प्रॉफिट बना रहे हैं। But you know what? A lot of them had early mover advantage. आप अभी जो एंटर कर रहे हैं with a 3.5 crore commission, it's still relatively very tiny. Too many people vying for the same group of customers and the same end cases. So for that reason, I'm out. आपने आके एक पिक्चर दिखाई थी कि ये काफी टेक प्लेटफॉर्म है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपके कंपैरिजन टूल के लिए लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट से, फिर वो लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इट्स अ डिजिटल बिजनेस। उसके बाद पता चला कि ये पूरा बिजनेस है जो एक कॉलिंग वाला बिजनेस है, विच इज आउटगोइंग। इनबाउंड कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट तो एक्चुअली 0 है। सेकेंड इज, मुझे आपके नंबर्स में भी थोड़ा कंफर्ट कम आ रहा है, बिकॉज मतलब 18 लाख की कॉस्ट है और कुछ मिला के 25 लाख, आप 50-60 लाख नेट रेवेन्यू कर रहे हैं। आप क्यों 7-10% इबिट्टा कर रहे हैं, नॉट 50% इबिट्टा? वो मुझे नंबर्स अभी भी थोड़े ट्रायंगुलेट नहीं हो रहे। So I feel that I am not able to get that trust and transparency which I would need to write a check इतने छोटे टाइम में। तो for that reason I'm not able to partner with you, but best of luck. All right, the best, wish you guys. all the best. Thank you. Bye guys. Good luck. ट्रू फीडबैक है। 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो अच्छा ही फीडबैक था, और हम लोग उसको सराखों पे रखते हैं। जो 2-4 हम लोगों को कमियां भी थी, वो भी हम लोग को बताई, जो हम लोग को शायद रोजमर्रा में हमारे एम्प्लॉइज नहीं बता सकते, तो उन समझदार लोगों ने हम लोग को बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। The take back is that we need to focus more on performance market so that customer can come on our funnel and take our product, which we were not able to show them.